Hello everyone, today's topic is philosophy of religion, pluralism, inclusion and exclusion. बहुलवाद, समावेशवाद और विशिष्टवाद. Religious diversity. Religious diversity is the fact that there are significant differences in religious belief and practice. धार्मिक विभिन्नता जो है वो क्या है? विभिन्न धर्मों में जो विश्वास हैं, जो अभ्यास हैं, जो परंपराएं हैं, उनमें अंतर है, उनमें महत्वपूर्ण अंतर है. यही रिलीजियस डाइवर्सिटी है. It is undeniable today that we live in multiple religious society, and religion is a part of the social cultural lives of individual, and it influence almost all aspect of one's life. Religious difference have been known to cause social conflict among the followers of different religion, and also side by side it also find that different religions interact with each other, and such interaction very often give rise to interesting development within religion. तो हम ये देखते हैं कि विभिन्न धर्मों में जो अंतर पाया जाता है वो कभी कभी धर्मों के बीच झगड़े का भी एक कारण बन जाता है, और कभी कभी उन विभिन्नताओं के कारण जब लोग उन विभिन्नताओं को स्वीकार करते हैं तो उनके बीच एक सामंजस्य भी बनता है. Every religion is dynamic and goes through a process of change and development. हर धर्म समय के साथ बदलता है, इम्प्रूव होता है. And the question here is whether the doctrine of different religions which are opposed to each other can all be taken as true at the same time. अब सवाल ये है कि क्या ये जो विभिन्नताएं हैं उन्हें हम एक ही समय पे, क्या उन्हें हम सभी विभिन्नताओं को, सभी धर्मों को सही बोल सकते हैं? These differences concern several issues like nature of ultimate reality, its relation to the world, man's nature and place in the world, the ultimate end of the life, and other such questions. So, for example, there are multi-type of variation. Like some believe in many god and goddess. Other believe in one God as a supreme being. Some regard God as personal. अदर रिगार्ड हिम एज इम्पर्सनल. जैसे कि हम जो सगुण और निर्गुण ईश्वर की बात करते हैं ना, तो कुछ लोग सगुण जैसे राम कृष्ण जिनको हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और कुछ लोग इम्पर्सनल यानी कि वो गुणों से अलग है, वो आपके प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, परसेप्शन का ऑब्जेक्ट नहीं है. And some religion like Buddhism and Jainism don't accept any transcendent reality like God. Hinduism believe in rebirth. On the other side, Christianity and Islam believe that human beings have only one earthly life. So, for some, ultimate goal of life is the attain of heaven, and for some other liberation. कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग ही जीवन का अंतिम ध्येय है, और कुछ लोगों को लगता है कि मोक्ष. So these diverse views cannot be accepted as true at the same time without leading to absurdity. Such differences have been found to create serious conflicts and confrontation among the followers of different religion. तो जो हम विभिन्नता देखते हैं, अब हम उसको दार्शनिक दृष्टि से कैसे देखें, कैसे वो चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, उस समस्या का समाधान क्या है. सो three important schools within Christian theology of religion are pluralism, inclusion, and exclusion, which describe the relation of other religious tradition to Christianity and attempt to answer question about the nature of God and salvation. तो ये तीन रिस्पॉन्स हैं हमारे सामने. रिलीजियस प्लूरलिज्म, जिसको हम धार्मिक बहुलवाद या बहुलतावाद कहते हैं, इंक्लूजम समावेशवाद, एक्सक्लूसिविज्म विशिष्टतावाद. अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे. if I give the short intro, so pluralistic approaches to religious diversity say that within bonds one religion is as good as any other. In contrast, exclusivist approach say
that only one religion is uniquely valuable. Finally, inclusivist theories try to steer a middle course by agreeing with exclusivism that one religion has the most value while also agreeing with pluralism that others still have significant religious value. तो पॉइंट ये है कि एक तो प्लूरलिज्म है जो ये कहता है कि सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म अपने आप में सत्य हैं। उसके बाद एक्सक्लूसिज्म है, वो कहता है कि नहीं, सिर्फ एक ही धर्म सत्य है, सिर्फ हमारा ही धर्म सत्य है। और इंक्लूजन कहता है, वो बीच का रास्ता लेता है, वो कहता है कि एक धर्म तो है लेकिन हम दूसरे धर्मों को भी मान सकते हैं। अब हम इसे डिटेल में करते हैं। फर्स्ट इज एक्सक्लूसिविज्म, विशिष्टतावाद। सो इन मोस्ट कॉमन रिलीजियस रिस्पॉन्स इज एक्सक्लूसिविज्म। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो हमारा धर्म है वो सुपीरियर है, वो अपने आप में परफेक्ट है। सो बल्कि each religion assert that it alone has the truth and all others are false insofar as their belief conflict with its own। तो कहते हैं कि एक्सक्लूसिविज्म ये है कि एक ही धर्म, वो जैसे जो हमारा धर्म हुआ, ठीक है, वो धर्म अपने आप में सोचता है कि मेरा ही जो है वो सत्य है, बाकी जो धर्म है वो क्या है, असत्य है। Exclusivists claim about propositional view of revelation, which holds that certain propositions are revealed by God and these are recorded in the scripture। ये हमने रेवलेशन एंड फेथ की वीडियो में भी पढ़ा है कि प्रपोजिशनल व्यू ऑफ रेवलेशन, कि उसमें क्या है, उसमें आपको जो प्रपोजिशंस रिवील की गई वो ये कहा है कि ये गॉड ने की हैं और वही स्क्रिप्चर्स बन गए हैं। तो जो एक धर्म का स्क्रिप्चर जो बना हुआ है, जैसे मान लो हम हिंदू का माने तो रामायण, भारत, महाभारत या गीता है ना, या हम मुस्लिम का माने तो कुरान, तो इस तरह का हर धर्म का अपना स्क्रिप्चर है और वो कहते हैं कि ये स्क्रिप्चर ही बेस है उनके धर्म का। रिलीजन दैट इज बेस्ड ऑन divine revelation and believes that its scripture contain the divine words would find it difficult to consider truth to contrary view. So exclusivism is the clear teaching of scripture। आपके शास्त्रों में, आपके स्क्रिप्चर्स में जो सिखाया गया है वही एक्सक्लूसिविज्म को एस्टैब्लिश करता है। देयर इज ओनली वन वे ऑफ सल्वेशन according to exclusivism and that is exclusively through faith in Christ। ये क्रिश्चियन रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि सल्वेशन, मोक्ष का एक ही रास्ता है और वो क्या है कि आप क्राइस्ट में फेथ रखें। अगर हम इसको और किसी रिलीजन या जनरल कहना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिविज्म का मतलब ये है कि हर एक धर्म जो अपने आप में यूनिक है, वो कहते हैं कि सबका अगर मोक्ष मिलेगा तो सबका जो शास्त्र है या उनका जो भगवान है उसी में विश्वास रखना ही आपके लिए मोक्ष का एकमात्र इकलौता रास्ता है। अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, inclusivism is the theological position that holds that there is no salvation in non-Christian religions। यानी जो क्रिश्चियनिटी के अलावा जो रिलीजन है उनमें मोक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि एक्सक्लूसिविज्म का ऐसा मानना है कि अगर वो क्रिश्चियनिटी के हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट ही हैं जो आपको सल्वेशन दे सकते हैं, जिनका उसमें फेथ है उन्हें सल्वेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जो क्रिश्चियन से अलग धर्म है तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो क्राइस्ट नहीं मानते लोगों का, तो इसका मतलब है कि जब क्राइस्ट को नहीं मानते हैं तो उन्हें सल्वेशन भी नहीं मिलेगा। The notable among the exclusivists of the 20th century are Samuel Germer, Heinrich Kenna and Lesslie Newbigin। ये तीन दार्शनिक थे जिनको महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है एक्सक्लूसिविज्म के लिए। नाउ द सेकंड इज इंक्लूसिव। Inclusivism is the belief that God is present in non-Christian religions to save adherents through Christ। जैसा कि अभी हमने बात किया एक्सक्लूसिविज्म में
कि क्राइस्ट ही सिर्फ सेल्वेशन दे सकते हैं। अब इंक्लूसिज्म उसके अगेंस्ट वो कहता है कि नहीं, वो धर्म जिनमें जो नॉन क्रिश्चियन हैं, जो क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, उन्हें भी सेल्वेशन मिल सकती है। उनका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। द इंक्लूसिव व्यू हैज़ गिवन राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस क्रिश्चियन। कहने का मतलब कि देखो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इंक्लूसिज्म क्या है कि एक धर्म को तो वो मान्यता दे ही रहा है, एक धर्म को तो स्ट्रांगली बिलीव कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि दूसरे धर्म में भी कुछ कुछ सत्य हैं, उन्हें भी हम अपना सकते हैं। तो इस तरह से वो क्या कहता है कि जो क्रिश्चियनिटी से अलग जो धर्म हैं उनमें भी सेल्वेशन है। क्यों? क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं वो एनोनिमस क्राइस्ट है, कहीं ना कहीं क्राइस्ट ही उन्हें अल्टीमेट रूप से सेल्वेशन दे रहे हैं। सो एन एडरेंट ऑफ नॉन क्रिश्चियन रिलीजन whom the Christian God nevertheless saves through Christ. This position was popularized by Roman Catholic theologian Karl Renner. ये उनके द्वारा बताया गया था ये। और वो आगे क्या कहते हैं, कार्ल रेनर अग्रीड विद द एक्सक्लूसिव नोशन दैट क्रिश्चियनिटी इज द वन ट्रू रिलीजन as it was founded on God's revelation through Jesus. क्यों? क्योंकि वही वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी ही एक सत्य धर्म है। क्यों? क्योंकि जीसस के द्वारा जो रेवलेशन दिखाई गई, जो लिखाई गई या फिर प्रस्तुत की गई, वही उसका एकमात्र आधार है। क्रिश्चियन इंक्लूसिज्म इज बेस्ड ऑन टू एक्सिम्स। क्या है वो एक्सिम्स? First is that salvation is through Christ alone, and the second is that God wills the whole world to be saved. अब देखिए, इंक्लूसिज्म का यहीं पे कई लोग कहते हैं कि देखिए यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ वो क्या कह रहा है कि सिर्फ क्राइस्ट ही सेल्वेशन दे सकते हैं, सिर्फ क्राइस्ट के द्वारा ही आपको मोक्ष मिल सकता है, और दूसरा क्या है कि ईश्वर इच्छा क्या है कि वो पूरी दुनिया को सेव करे, पूरी दुनिया में सल्वेशन की बात करे, और पूरी दुनिया तो क्रिश्चियनिटी को बिलोंग नहीं कर सकती ना। तो यहीं पे एक कॉन्ट्रडिक्शन रेज होता है। फर्दर रिलीजन में कंसिडर दैट इट इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ truth, while religion may not regarded the doctrine of other religion as false. So basically inclusivists argue that God saves people through Christ alone. क्योंकि मानना है कि क्राइस्ट के थ्रू ही ईश्वर बचाता है, लेकिन बचाने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के अंदर है, और वो है क्रिश्चियनिटी। हालांकि वो दूसरे धर्म के लोगों पर भी अपनी दया बनाता है। ये इंक्लूसिज्म है। समावेशवाद, जिसमें दूसरे धर्म को भी समावेश किया गया है, यानी आपको बाहर नहीं कर रहे। हम अपनी दया, हम अपने धर्म की दया, हम अपने ईश्वर की दया आप पर भी बनाए हुए हैं, आपको भी समावेश कर रहे हैं इस अर्थ में। सो इंक्लूसिज्म समटाइम रेफर्स टू द क्रिश्चियन व्यू दैट those who don't accept Jesus Christ's message can also get salvation. And within religious study and theology, inclusivism is the belief that although only one belief system is true, except of its truth can be found in other religion. कि रिलीजन तो एक ही सत्य है, लेकिन उनके सत्य के पहलू दूसरे रिलीजन में भी पाए जा सकते हैं। This is contrasted from religious pluralism, which assert that all beliefs are equally valid within a believer's particular context. Now, religious pluralism. Both exclusivism and inclusivism are problematic. So there is therefore a genuine attempt on the part of some theologians and philosophers to create room for pluralism. Pluralism is the belief that multiple religions are true and equally valid in their communication of truth about God, word, and salvation.
ये प्लूरलिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनका विचार क्या है कि सारे धर्म और एक से ज़्यादा धर्म सही हैं, सत्य हैं, अपने आप में वैध हैं, और वो जो भी बताते हैं ईश्वर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेल्वेशन के बारे में, वो भी सही है। तो ये है प्लूरलिज्म का बेसिक थॉट। एंड द चीफ एक्सपाउंडर ऑफ दिस व्यू इज जॉन हिक। इनकी बुक भी है, इवन सिलेबस में यही बुक प्रिस्क्राइब्ड है। आपका जितना सिलेबस है आधे से ज़्यादा जॉन हिक की बुक में मिल जाता है। जॉन हिक, who first propounded it in his book God and the Universe of Faiths. Religious pluralism is a normative principle requiring that people of all or most religions should be treated the same. कि रिलीजियस धार्मिक बहुलतावाद एक ऐसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि सभी या तो धर्म या सभी धर्म या आधे से ज़्यादा या फिर अधिक धर्म अपने आप में एक समान हैं। उनमें विभिन्नता जरूर है, लेकिन विभिन्नता के बाद भी हम ये बात कर रहे हैं, विभिन्नता को स्वीकार करते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि वो सत्य हैं। द टर्म religious pluralism is almost always used for a theory asserting positive value for many or most religion। कि religious pluralism क्या करता है कि दूसरे धर्मों की जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो उन्हें असर्ट करता है कि इस धर्म में भी ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है ना। इस तरह से धार्मिक प्लूरलिज्म को हम डिफाइन करते हैं। बट one may talk also of negative religious pluralism। इसमें क्या होगा? In which most or all religion have little or no positive value and are equal in this respect। कि दूसरे धर्मों में कम या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है और इस सेंस में वो एक दूसरे के समान है। इसे नेगेटिव रिलीजियस प्लूरलिज्म कहा जाता है। Pluralism as a response to religious diversity imply accepting that all major religion of the world possess truth and values. Pluralism goes beyond religious tolerance, promoting greater harmony and understanding among religion। कि प्लूरलिज्म का एक पॉजिटिव साइड क्या है कि वो जो धार्मिक सहिष्णुताएं हैं उन वो उससे बहुत ऊपर है और दूसरे धर्मों में या धर्मों के बीच आपसी सामंजस्य बना के रखता है। उनके बीच एक समझदारी बनती है कि हाँ, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है और इस तरह से वो सभी धर्मों को एक्सेप्ट करता है। प्लूरलिज्म सेज देयर आर मेनी पाथ टू गॉड हु मे बी कॉल्ड आइदर अल्लाह, जीसस और राम कृष्ण, है ना। ये बहुत सारे पाथ हैं गॉड को पाने की, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है, वे अलग हो सकते हैं। नाउ सम प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब प्लूरलिज्म को लेके लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है कि क्यों सारे धर्म कैसे हो सकते हैं, किसी का क्रिटिसिज्म भी है ना। सो फर्स्ट इज एन uninformed person noting certain commonalities of religious belief and practice may suppose that all religions are same, namely that there are no significant difference between religious ट्रेडिशन। की डिफरेंस तो है बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंस पर ही फोकस करें। वो अल्टीमेटली वो एक दूसरे से समानता भी रखते हैं और वो समान हैं। So another way in which pluralism can be named is common assumption that absolutely all religion are good in significant way. For example, by improving their adherent lives, facilitating interaction with God और leading to internal salvation। ये तो सभी धर्मों में होता है, तो इस तरह से सभी धर्म समान हैं। Another view is within the pluralistic mainstream of Hinduism. A popular slogan is that all religions are true। सभी धर्म सत्य हैं, but this may be an expression of almost any sort of positive religious pluralism. Moreover, some influential modern Hindu leaders have adopted a complicated rhetoric of universal religion।
universal religion which often assume some sort of religious pluralism. यूनिवर्सल रिलीजन क्या है कि सार्वभौमिक धर्म सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी धर्म को एक ऐसा धर्म जो सभी लोग मान सकते हैं, है ना, वो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग ना करे। उस इसे भी हम किसी ना किसी अर्थ में रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू क्या है? इट इज समटाइम आर्ग्यू दैट डिफरेंट रिलीजन्स एक्चुअली आर पाथ टू द सेम गोल। ये कहा जाता है कि जो इतने सारे धर्म हैं एक्चुअल में वो एक ही गोल के अलग अलग पाथ हैं, यानी तुम्हारा डेस्टिनेशन एक है, बस रास्ते अलग अलग हैं। Since people can achieve the goal through any one of the path outlined in the different religion, the difference between religion is not significant. कि जो तुम्हें अंतर दिख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो प्राथमिक नहीं है। जैसे आपको मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है, तो आप अगर दिल्ली में ही रह रहे हैं, आप मेट्रो से भी जा सकते हैं, आप बस पकड़ के भी जा सकते हैं, आप कैब भी ले सकते हैं, आप अपने भी साधन से जा सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे रास्ते अलग अलग हैं लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। जब पेपर होता है तो स्टूडेंट अलग अलग वे से एक ही डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अंतिम धर्म तो लिबरेशन है, सेल्वेशन है। आप उसे जो इस गोल को पाने के लिए आप किसी भी धर्म से आओ, है ना, आप क्रिश्चियनिटी के थ्रू आओ या आप हिंदुइज्म के थ्रू आओ या आप मुस्लिज्म के थ्रू आओ, आप किसी के भी थ्रू आओ, लेकिन हमारा जो गोल है वो तो एक ही है। तो इस तरह से लोगों का एक व्यू ये भी है। फर्दर the difference, as I said, difference is not significant. Swami Vivekanand support a view the whole world of religion is only a traveling, a coming up of different man and women through various condition and circumstances to same goal, है ना। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि भाई गोल एक ही है, लोग अलग अलग यात्राओं से आ रहे हैं। अगेन जॉन हिक ऑल्सो स्टेटेड द सेम phrase. Pluralism then is the view that transformation of human existence from self-centeredness to reality-centeredness is taking place in different way within the context of all great religious tradition. There is not merely one way, but a plurality of way of salvation or liberation. कि यहाँ पे केवल एक रास्ता नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं उस गोल को पाने के लिए। बट दिस अप्रोच इज हाईली प्रॉब्लमेटिक। अब इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंट रिलीजन डोंट पुट फॉरवर्ड द सेम स्पिरिचुअल गोल फॉर देयर फॉलोअर्स। कि लोगों का सेम स्पिरिचुअल गोल नहीं होता। अब आप कह रहे हैं कि गोल सेम है, सबको सेल्वेशन चाहिए, है ना, तो अब प्रॉब्लम ये है कि जरूरी नहीं सबको सेल्वेशन चाहिए हो। फॉर सम इट इज अटेनमेंट ऑफ हेवन आफ्टर डेथ, हो सकता है किसी को स्वर्ग चाहिए। फॉर अदर्स इट इज द ऑब्टेनिंग ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड इन द लाइफ, किसी को गॉड की कृपा बनाए रखो अपने जीवन में। एंड फॉर सम इट इज द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन एंड गेटिंग रेट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, है ना। तो the goal of human being can be different. So how can you say the goal is one and there are many or various way to deal it? तो ये दिक्कत है कि हमारा गोल ही सेम नहीं है, और आप बार बार यही कह रहे हैं कि गोल सेम है लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। Thus, it is not clear at all how different religion can be regarded as path to same goal. The paths may have some general similarity. वो कहते हैं कि इन पाथों में, इन धर्मों में जनरल सिमिलैरिटीज तो हो सकती हैं, समानताएं तो हो सकती हैं। For example, the requirement of leading a virtuous life, except in the case of atheistic significantly religion, submission to a higher divine reality, कि हर धर्म कहीं ना कहीं वर्चुअस लाइफ यानी आप एक अच्छा जीवन जिए, या आपका चरित्र अच्छा हो, है ना, आपका जो धर्म हो वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, डेवलप करे, एक डिवाइन रियलिटी का सबमिशन हो, ये सब तो सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। बट द प्रॉब्लम इज ये सिमिलैरिटी ये नहीं बताती है ना कि सभी धर्म सत्य हैं। समटाइम
explained by claiming that religious difference are different account of same truth or reality, even different understanding or account apparently conflict. और जबकि उनमें जो अंडरस्टैंडिंग है धर्मों को लेके उनमें विवाद भी संभव है। ये दूसरा व्यू था। एक तरह से मैंने आपको कितने बता दिए हैं। मैंने आपको ये थर्ड वाला बता रही थी मैं, जिसमें प्रॉब्लम थी थर्ड वाले अप्रोच में, और फोर्थ वाला आपका यहाँ से शुरू हो सकता है। समटाइम एक्सप्लेन दैट, अब ये क्या है, रिलीजियस डिफरेंस आर डिफरेंट अकाउंट ऑफ सेम रियलिटी और ट्रूथ। कि जो रिलीजियस डिफरेंस आपको दिख रहे हैं वो एक ही रियलिटी के डिफरेंट अकाउंट हो सकते हैं, इवन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग और अकाउंट्स अपरेंटली कॉन्फ्लिक्ट, और आपको ऐसा लगता है कि उनमें विवाद है। इट इज बिलीव्ड दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज ओनली सुपरफिशियल सिंस अल्टीमेटली ऑल रिलीजन्स अप्रेंडेड एंड रेफर टू द सेम रियलिटी। वो कहते हैं कि ये जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं ये आप सिर्फ अपरेंट है, यानी आपको प्रतीत हो रहे हैं, आपको इनका आभास हो रहा है, ये दिस इज नॉट रियल डिफरेंसेस। जो रियलिटी है वो तो अपने आप में एक ही है, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। स्वामी विवेकानंद ऑब्जर्व दैट ट्रूथ इज वन बट different human being perceive it differently in accordance with their nature। स्वामी विवेकानंद भी इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं कि सत्य तो एक ही है, लेकिन लोग अपनी समझ के अनुसार इसको अलग अलग ढंग से समझते हैं। महात्मा गांधी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, he believed that these different conception of God are rooted in human limitation in understanding the visible supreme reality and assert there is only one omnipotent and omnipresent God. He is named variously and we remember him by the name which is most familiar to us. Each person can choose the name that appeals most to him. ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, है ना, क्राइस्ट, हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। सो गॉड हैज 1,000 नेम और रादर ही इज नेमलेस। उसका अपना कोई नाम नहीं, नाम तो आपने रखे हैं। सो ही मे वर्शिप और प्रे टू हिम बाय विच एवर नेम दैट प्लीजेज अस। ऑल वर्शिप द सेम स्पिरिट, लेकिन हम सब ही एक ही सत्ता को, एक ही दैवीय शक्ति को पूज रहे हैं, भले ही हमने नाम अलग अलग रखे हैं, बट हमारा पूजने का जो तरीका भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सत्ता है, जो बीइंग है, वो एक ही है। ये महात्मा गांधी जी का कहना था। नाउ अनदर पॉइंट इज, ये आपका फिफ्थ हो सकता है, फॉलोइंग द जैन फिलोसफिकल ट्रेडिशन। अब जैन फिलोसफी रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में क्या कहती है, डाइवर्स ऑन्टोलॉजिकल व्यू कैन बी रिगार्डेड एज पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम रियलिटी। अब वो ये कहते हैं कि एक ही रियलिटी का पार्शियल डिस्क्रिप्शन, यानी पूरी तरह से नहीं दिया आपने, कुछ एक धर्म ने बताया, कुछ दूसरे धर्म ने बताया, रियलिटी तो एक ही है। सो अकॉर्डिंग to Jain tradition, reality has many aspects and it is not possible for any one person to grasp all these aspects। कि reality तो एक ही है, लेकिन उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे पहलू हैं, और एक पर्सन में इतनी कैपेसिटी नहीं है विदाउट ऑफ लिमिटेड सेंस एक्सपीरियंस और लिमिटेड सेंसेस, वो रियलिटी को पूरी तरह से ग्रेस्प नहीं कर सकते। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ एलिफेंट एंड ब्लाइंड पर्सन, क्या एग्जाम्पल है, दिस इज एक्सप्लेन थ्रू द पैराबल ऑफ एन एलिफेंट and 7 blind men describing it. The one who holds the trunk describe it as similar to a snake। जो भी हाथी की सूंड पकड़ता है वो कहता है ये सांप की तरह है। The other who touch the leg describe it as similar to the pillar। जो उसका पैर पकड़ता है वो कहता है ये खंबे की तरह है। एंड सो ऑन, जो उसकी पूंछ पकड़ता है वो कहता है रस्सी की तरह है, जो उसका पेट पकड़ता है वो कहती है दीवार की तरह है। सो ईच डिस्क्रिप्शन इज ट्रू बट ओनली पार्शियली, क्योंकि हर किसी ने छू के देखा, वो सत्य तो है लेकिन आंशिक रूप से।
So it emphasized that one should not disrespect or disregard a perspective different from one's own. तो ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे के धर्मों का रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि हमारा ही धर्म सुपीरियर है, परफेक्ट है, ऐसा नहीं. However, only one who has perceived or knows the elephant in its entirety कैन होल्ड सच अ पर्सपेक्टिव. जो एलिफेंट को पूरी तरीके से देख सकता है वही उसको उसका परफेक्ट व्यू ले सकता है, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता. तो इस तरह से ये अलग अलग व्यू है रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में. सो कंक्लूजन क्या निकला अगर मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो एक्सक्लूसिविज्म क्या है. क्रिश्चियनिटी इज द वन ट्रू रिलीजन and it is only through the Christianity that one can be saved or God's salvation. Inclusivism, Christianity is the one true religion, but it is the possible for non-Christian to be saved through other religion. And pluralism, all religion are equally true and equal paths to salvation. तो ये था pluralism, exclusivism and inclusivism. Thank you so much.